इसी तिमाही में सुज़लोन के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफे में 15% की ग्रोथ रही है, जबकि रेवेन्यू करीब 42% से ज़्यादा बढ़ा है। मार्जिन में हल्का सुधार है। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सुज़लोन के ग्रुप सीईओ जेपी चलसानी जी। चलसानी जी, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्निंग्स में आपका मोमेंटम इस समय थोड़ा सा लौटता हुआ, खासतौर से रेवेन्यू आपका अच्छा जंप हुआ, करीब 42%। एबिडा में भी 48% की ग्रोथ रही। यहाँ से आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है आपको? Hello, so before we give you the outlook, let's just look at the quarter which has gone. We have supplied 617 megawatt, which is the highest ever supplied in any quarter till now, surpassing 575 megawatt what we did in quarter 4 of last year. And we have the highest closing order book of 6.4 gigawatts. Not just that, we gave a guidance earlier that we will improve our EPC share to 50% by FY28. We started moving in the direction. We have now moved from last quarter to this quarter, 20% to 27%. 27% of our outstanding order book is EPC. And as you said, the revenue grew by 42%. Our EBITDA grew by 48%. And as usual, there is a confusion about profit, which I want to clarify again. We said earlier also that you need to look at PBT, not the PAT, because the tax, what comes is a non-cash item for us. As we explained earlier, that we have a deferred tax asset sitting with us, which is a converted carry forward losses in deferred tax asset. So therefore, whenever there's a tax, we just draw from that asset. There is no cash outflow. PBT is what completely remains with us. From that angle, if you look at it, our profit has gone up to 45%. And the second, on coming to the future, Anuj, you know that we gave a guidance of 60%. चलसानी जी, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ। चलसानी जी, आपकी हिंदी काफ़ी शानदार है। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने मुझसे एकदम सही हिंदी में बात की थी। थोड़ा अगर कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, तो अगर थोड़ा सा आप हिंदी में जवाब दे पाए तो। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। जो प्रॉफिट का मैं फिर से हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। नहीं, वो चलेगा। आप आगे का आउटलुक दे दीजिए, वो कोई इशू नहीं है। वो आगे का आउटलुक अनुज, आपको पता है कि हमने 60% गाइडेंस दिया है, ओके, फॉर द ईयर एज ए होल इन ऑल की पैरामीटर्स। आप 9 मंथ्स के एंड में देखेंगे, our EBITDA is at 77% higher and our profit is at 77% higher. Okay, therefore we are in the right direction. As we move ahead, as we see the next quarter, obviously we will beat the whatever we supplied in this quarter. We will again have the highest ever deliveries in the quarter 4, and we are absolutely confident that we will meet the guidance what we gave of 60%. There is no change in that, and we committed to that, and we will deliver that. अच्छा चलसानी साहब, ये 17.28% की ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करना क्या आगे भी पॉसिबल हो पाएगा? एंड फुल ईयर आपकी मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी? इस पर आपके प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं? अगर आप देखेंगे 9 मंथ्स में 18.5% है हमारी EBITDA मार्जिन। इस क्वार्टर में 17.5% है। इसमें क्या होता है कि हमारे EBITDA मार्जिन डिपेंड्स आल्सो ऑन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ WTG रेवेन्यू, विंड टर्बाइन रेवेन्यू वर्सेस OMS रेवेन्यू। क्योंकि विंड टर्बाइन रेवेन्यू का EBITDA मार्जिन 15% है और whereas the OMS revenue is 40%. When wind turbine का रेवेन्यू बढ़ता है, OMS का प्रोपोर्शन कम होता है, तो हमारा मार्जिन थोड़ा कम लगता है। Absolute EBITDA keeps growing, as I said that we've grown by 48% year on year, but the margin has come down because the WTG volumes have gone up. And still, having said that, we're at 18.5% at the end of 9 months, and it will be around 17-18% margin, which is the guidance we always give. ओके अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी अनुज के पहले प्रश्न के उत्तर के एवज में कहा कि आई मीन डिलीवरीज वर रिकॉर्ड एट 617 मेगावाट। कंसिडरिंग करंट कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड ऑल आई मीन सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज, क्या यही डिलीवरीज आगे आने वाले क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और FY27 में इस ऑर्डर बुक का एग्जैक्टली आप कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे? डू यू हैव एनी प्रोजेक्शन फॉर दैट? देखिए, FY27 अगली बार जब मिलेंगे तो बात करेंगे एनुअल रिजल्ट्स के लिए। मैं लेकिन ये बोल सकता हूँ कि अभी फोर्थ क्वार्टर में इट विल बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर फॉर अस। तो अभी तक जितना भी हमने हायर सप्लाई किया उससे बहुत ज्यादा सप्लाई करेंगे फोर्थ क्वार्टर में, वो मैं बोल सकता हूँ। एंड FY27 ऑब्वियसली ग्रोथ तो रहेगा,
बट क्या रहेगा, क्या गाइडेंस है, जब हम लोग एनुअल रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। कॉन कॉल में आपने एक बात कही कि जो मेन बॉटलनेक है वो इंस्टॉलेशन की है, इन ऑर्डर इनफ्लो की नहीं है। वो कब तक नॉर्मलाइज होगा? देखिए अभी हो रहा है, फिर आप कंट्री में देखेंगे तो फर्स्ट 9 मंथ्स में डबल किया हमने कमीशनिंग इस साल। वी आर ऑलमोस्ट एट 4.5 गीगावाट्स कंपेयर टू 2.2 गीगावाट्स लास्ट ईयर। तो हमारा भी 80% से बढ़ा है फर्स्ट 9 मंथ्स में। तो धीरे से वो हो रहा है। बट दूसरा हम लोग जो कर रहा है कि आपने देखा भी होगा हमारा प्रेस रिलीज में, हमने डेवलपमेंट में कंसंट्रेशन दे रहा है। दैट वी सेड दैट वी विल आल्सो क्रिएट एन एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट कंपनी। ये कंपनी क्या करेगा कि एडवांस डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स करेगी। वो ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में जो प्रोजेक्ट्स हमको करना है उसका काम अभी स्टार्ट करके उसका लैंड एक्विजिशन, पाथवेज एक्विजिशन, कनेक्टिविटी सब लेके तैयार रख के, प्लस वी विल आल्सो हैव अ स्ट्रेटेजिक सेल्स विद लार्ज कस्टमर्स। तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा क्विकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इससे क्या कि विन विन होता है, हमारे लिए भी अच्छा है, जल्दी कर सकते हैं हम लोग, हमारा कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन कम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइंट के लिए इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कम होता है। आई थिंक देयर आर डिफरेंट वेज दैट एज वी मूव फॉरवर्ड ये कम होगा अभी। मीन्स मतलब कमीशनिंग ज्यादा होगा, तकलीफ जो फेस कर रहा है हम लोग अभी वो कम होते जाएगा। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल पॉसिबली मेरी तरफ से। एक विंड टरबाइन एबिडा मार्जिन्स को लेकर, स्पेसिफिकली इस सेगमेंट के एबिडा मार्जिन्स को लेकर भी आपने कॉन कॉल में काफ़ी बातें कही। यहाँ पर अब नया नॉर्मल क्या होगा मार्जिन्स के लिए? देखिए अनुज, हमारा बोथ कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एबिडा मार्जिन कंसिस्टेंटली हैज बीन हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस। लेकिन हम हर बार यही बोल रहा है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है आप 23-24% लीजिए और एबिडा मार्जिन है अराउंड 14-15% लीजिए। तो ये क्या कि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा वेरी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द मिक्स ऑफ डिलीवरी दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। अगर उस क्वार्टर में थोड़ा एवरेज सेल्स प्राइस बढ़ गया तो वो बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रोजेक्ट्स का एबिडा मार्जिन बहुत कम है तो एबिडा मार्जिन गिरता है। बट आवर थिंग इज दैट यू कैन टेक इट एज 15% एज द एबिडा मार्जिन फॉर WTG डिवीजन, अराउंड 24-25% एज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, व्हिच वी विल मेंटेन एंड इवन ओके। टुडे वी आर मेंटेन। चलिए चलिए, चलसानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर आउटलुक के लिए, और शुक्रिया आपने वो मेरी बात मानी और उसके बाद जो आपने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने की। थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू।